Hello, dear aspirants. I hope you all are enjoying the concept talk, right? So, this journey is becoming more and more interesting day by day. Thing is, we are not only addressing the conceptual clarity, but at the same time, we are trying to hit the demand of exam as well, right? So, today is like a beautiful day for us as we are gonna start this concept talk for something new. Something new is not that much beautiful. The beautiful thing is we are gonna decode a topic now onwards, which is like the cause of fever for many of the maths optional aspirants, right? So let's start that. So basically, as the name suggests, today we are gonna do the decoding for algebra. So as far as this CSE optional is concerned, so for the CSE as well as forest services, in case of mathematics optional, in the paper 2, we have a very important topic, that is algebra, modern algebra, some people say it, and some people say it abstract algebra. Why it is abstract in nature? The name itself creates lot of curiosity for us, right? So in this particular session, I will try to draw skeleton actually for you, कि what actually the algebra is, fair, what actually the algebra is, what should be the systematic learning for this particular topic. What is the systematic learning for this particular topic to prepare in right way? So as you all know, we never deviate from the demand of our exam. So why people struggle within this topic? What is the reason behind that? Today we will try to explore that, and I hope you all will enjoy it. One thing I would like to say, just be patient enough. Try to get the ideas what actually algebra is and why people have fear. So within this today's 20 to 25 minute session, you will come to realize कि यार whatever the way I had followed initially for this topic, that had some loopholes. And once we try to rectify those loopholes, implement the better plans, the things are doable. And why I am able to say like this? Because I carry the experience from students like you, seniors like you. So they tell कि okay, algebra is working with fantabulous results with them. So let's move on. चलिए. So when I say decoding algebra, it's a like very deep task for us. I didn't say here कि I am gonna do the linear algebra or abstract algebra. I said it is all about decoding the algebra. ठीक है, और ध्यान से इस चीज को सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि अगले 15 मिनट आपके बहुत सारे टाइम को सेव करने वाले हैं, ये यकीन मानिए. ठीक है, चलिए. अच्छा, कभी आपने ये सोचा है कि मतलब मैथ्स की जो कहानी स्टार्ट होती है बेसिकली ऑब्जर्वेशन से होती है, राइट? हमने कुछ भी ऑब्जर्व किया, पैटर्न्स ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम सीक्वेंसेस ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम काउंटिंग पर फोकस करते हैं उन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने के बाद, राइट? सो व्हाट हैपन्स व्हेन वी गेट सम सिमिलर ऑब्जेक्ट्स or something like which can be put in one box.
बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट कि वी ट्राई टू डिफाइन या वी ट्राई टू हैव अ कलेक्शन of some elements. Those elements may be some patterns, some numbers, some articles, or any of the things. Ultimately, my dear fellows, we have हमने एक ऑफिशियल नोटेशन दिया है सेट का. ध्यान से देखना, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एकदम से दिमाग पे चित्र बन जाएगा आज. ठीक है, चलिए. सो व्हेन आई से सेट, सेट क्या होता है? बचपन से डेफिनेशन रट्टा लगाया है, कलेक्शन या वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स, राइट. सो यहां पे भी वही होता है, मैं कुछ नया नहीं बोल दूंगा आपको, ये भी बात है ना. लेकिन चीजें इवॉल्व कैसे हुई, और जब आपको अगर 10-15 मिनट में ये समराइज कर दिया जाए तो आपका इंटरेस्ट, आपकी मेमोरी जो ट्रैक करती है चीजों को, जो रिकॉल करती है, दैट बिकम्स इजी एक्चुअली. सो व्हेन आई से कि इनिशियली हमारे पास एक क्यूरियोसिटी था कि चलो ठीक है, पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है, कैलकुलेशंस देखने हैं, काउंटिंग्स देखने हैं. लेकिन आफ्टर सम टाइम वी फाउंड कि हमें जो एक टाइप के लोग हैं या एक टाइप के आर्टिकल्स हैं, उनको एक किसी सेट के अंदर रखना पड़ेगा ताकि हम बार बार सेम चीज को मनरेगा मजदूरी ना करें. लेट्स से यू सेड कि सिमेट्रीज ऑफ अ स्क्वायर पैटर्न्स हैं. अब सिमेट्रीज ऑफ अ स्क्वायर, लेट्स से जस्ट वेट अ मिनट, दिस इज अ स्क्वायर. ओके, अभी इफ आई रोटेट इट थ्रू द 90 डिग्री, द सेम स्क्वायर यू हैव. If I again rotate it through 90 degree, the same square, same visuals you have, same. But if I rotate it through 360 degree, 90 degree means 90 plus 90 plus 90, again 90, it will come back to its actual position and again to the first position. So what does it say? Now your maths का curiosity comes into the picture. किस पिक्चर में आता है कि भाई कई बार पैटर्न्स कुछ स्टेप्स के बाद रिपीट करने लगते हैं. तो करो क्या, एक कलेक्शन लो जिसमें ये जो मैंने आपसे अभी बोला सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एक कलेक्शन लो जो 4 पोजीशंस हैं, उनको किसी नाम से लिख दो, P1, P2, P3, P4. एक सेट बना दो S, और उसको बोल दो सेट ऑफ रोटेशनल सिमेट्रीज ऑफ अ स्क्वायर. कर सकते हैं. अब आपने सेट ऑफ इंटीजर्स पढ़ा था, आपने सेट ऑफ रियल नंबर्स पढ़ा था, अभी मैंने क्या बोल दिया? सेट ऑफ सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्रीज ऑफ अ स्क्वायर. सिमिलरली वी कैन हैव अदर ऑब्जर्वेशंस एंड पैटर्न्स एज वेल. अब स्क्वायर की सिमेट्रीज पे बात हो गई तो आपने कहा कि सर इक्विलेटरल ट्रायंगल पे क्यों ना कर लें, हेक्सागन पे क्यों ना कर लें. सो मैथमेटिशियंस कम विद द जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट कि चलो भाई, लेट Dn इज द कलेक्शन ऑफ सिमेट्रीज ऑफ अ रेगुलर एन गन. रेगुलर एन गन क्या होता है? एक ऐसी फिगर, जैसे स्क्वायर है, उसके चारों साइड सेम है, हेक्सागन में 6 साइड सेम ले लिए, तो यू विल से कि दैट इज रेगुलर 6 गन, स्क्वायर इज अ रेगुलर 4 गन टाइप ऑफ. सो अल्टीमेटली होता क्या है डियर फेलोज कि मैथमेटिशियंस की जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो होती है सेट से. सेट क्यों लिया गया? इज दैट क्लियर? आई होप इट्स टू एवरीवन, राइट? चलिए, what happens my dear fellows if you talk about, let's say, यहीं पे कहानी को पूरा घुमा देते हैं. Let's say if you talk about कि I had the symmetries of a square. Okay, what I had? I had the symmetries of a square. और symmetries में भी मैंने क्या लिया? Rotations लिए. In the coming lectures, we will try to have the reflections as well, but in today's decoding,
आई हैव जस्ट टेकन एन एग्जाम्पल जिसके थ्रू मैं पूरे अलजेब्रा को आपको विजुअलाइज करा दूंगा, डिकोड कर दूंगा। आप इस चीज को विश्वास मान के चलिए। क्या किया मैंने, ध्यान से देखिए, रोटेशनल सिमेट्रीज ऑफ अ स्क्वायर। देखना ध्यान से, मान लो एक फंक्शन डिफाइन किया जिसका डोमेन एलिमेंट को आई हैव रिप्रेजेंटेड बाय दिस। फिर इस फंक्शन ने इस एलिमेंट का जो इमेज दिया, मान लो वो इमेज सेम दे दिया। कहने का मतलब 0 डिग्री रोटेशन ऑफ स्क्वायर। इस स्क्वायर को, ये जो फंक्शन है, बेसिकली फंक्शन कैसे डिफाइन है, फंक्शन ऐसे डिफाइन है कि वो फंक्शन इस एलिमेंट को 0 डिग्री रोटेट कर देता है। क्लियर है बात? अब मान लो मैंने एक फंक्शन दूसरा लिया जो क्या करता है, इस स्क्वायर को 90 डिग्री रोटेट करता है, लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसकी भी अपनी स्टोरी है, किसी दिन मौका लगेगा तो इस पर भी पूरी चर्चा की जाएगी। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा मैथ्स की क्यूरियोसिटी और ग्रुप थियरी पढ़ना कैसे है, ग्रुप क्यों आया, ये सारी चीजें अगर आज दिमाग में सेट हो गई ना, तो यकीन मानिए माय टारगेट इज सक्सेसफुल। और मैं ये जानता हूं, मेरा अनुभव कहता है कि आज होंगी ही। ठीक, चलो क्या किया, इस दूसरे फंक्शन ने क्या किया, इस स्क्वायर को 90 डिग्री रोटेट किया। तो जब आप इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ए पॉइंट यहां दिखने लगेगा। सो दिस बिकम्स ABCD। अब कितने बार ये सिंबल्स बनाए जाएंगे, तो मान लो इसको मैंने नाम दे दिया, इसको नाम क्या दिया है, R0। ठीक है, इसको नाम बोल दिया R90। फिर ऐसे ही मैंने क्या किया, वापस से स्क्वायर लिया। अब मान लो 180 डिग्री रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज। फिर अभी क्या होगा डियर फेलोस, अब A यहां आ जाएगा, B यहां होगा, C यहां पे होगा, D यहां होगा। लेट्स से आई हैव गिवन दिस फंक्शन और दिस लाइक द सिस्टम एज R180। ठीक है, similarly what I can do is, let's say I have this square, I do the rotation again 90 डिग्री। ठीक है, मीन्स 270 से रोटेशन। अब A कहां पहुंच जाएगा, राइट, लेट्स से वी रिप्रेजेंट इट बाई R270। अभी what I do dear fellows, if I take another function f and I rotate it through 360 anti-clockwise, it will give me the original position itself। अब A यहां आ जाएगा, which is nothing but R0 only। फिर मैं इसको एक और 90 प्लस ऐड करके फिर से रोटेट करूं, I will get R90 again। फिर से एक और 90 डिग्री का रोटेशन लगा दूं, I will get R180 again। R180 मीन्स एक ऐसा स्क्वायर जहां A ये दिख रहा है, B यहां है, C यहां है, D यहां है, जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशंस। अब एज अ लेमैन या एज अ कॉमन पर्सन मुझे ऐसा लग सकता है कि यार इसका क्या यूज है। ठीक है, जितना बताएंगे आप मैं रोटेट करता जाऊंगा। लेकिन मैथमेटिशियंस इस चीज में सेटिस्फाई नहीं होते। ऐसा होता तो अभी आपके पास अलजेब्रा की एक बुक नहीं होती, इतनी बुक्स हो जाती, क्योंकि हर दिन हर चीज को लिखना रहता। ठीक है, तो फिर हम किस में इंटरेस्टेड होते हैं, पैटर्न्स ऑब्जर्व करते हैं। मैथमेटिशियंस क्या करते हैं, अगर आप हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स उठाकर देखेंगे, यू विल कम टू रियलाइज कि हम पैटर्न्स ऑब्जर्व करते हैं, और जब एक सिमेट्री दिखाई देने लगती है तो हम उसको डिकोडिफाई कर देते हैं, उसका नाम दे देते हैं, और फिर उस चीज के ऊपर जितनी भी चीजें ऑब्जर्वेशन हैं उनको एज अ रूल और एज एन इंटरप्रिटेशन लिख दिया जाता है।
यही कहानी मैथमेटिशियंस के दिमाग में रहती है। तो मैथमेटिशियंस ने क्या किया कि चलो आप इतने सारे, अब वापस से सेम एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, तो आप क्या करो, सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स उठा लो, ठीक है। ये इसका क्या है, F1, F2, F3, F4। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स नहीं है सेट एस के अंदर, सो इट इज वेल डिफाइंड। चलिए अब देखो प्यारे बच्चों, सेट क्यों बनाया, आई गेस इसका मैसेज अब आपको क्लियर है। लेकिन अब पता क्या है, अब वो यही नहीं कह रहे हैं कि तुम केवल इसी को उठा के रोटेट करते रहो, नहीं, वो आपसे ये कह रहे हैं, ध्यान से देखना, अगला जो ऑब्जर्वेशन है, तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन 1, ठीक है। ऑब्जर्वेशन 2 क्या है, दे सेड डियर फेलोज व्हाट यू डू, आप ना इन एलिमेंट्स का आपस में भी डिशुम कराओ। क्या कराओ, इन एलिमेंट्स को आपस में भी कंपोज कराओ, ठीक। कैसे कराओ, बोला एक ऑपरेशन ले लो, चूंकि इसके एलिमेंट्स फंक्शंस के फॉर्म में हैं, तो आप क्या करो, कंपोजिशन ले लो, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। F1 इंटू F2 तो कुछ होता नहीं है, F1 ऑफ F2 लाइक होता है ना, F1 O F2, F3 O F4, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस होता है। सो क्या किया, एक ऑपरेशन लिया, ध्यान से देखना इस चीज को, ऑपरेशन को ही आप कंपोजिशन बोलते हैं। कैसा लिया, बोला कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस ले लो, ठीक है। और मान लो आप इसको डिनोट कर रहे हो स्मॉल ओ से, ठीक। क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपको लगे कि F2 कंपोजिशन F3 क्या होगा, ध्यान से देखना, या आपको लगे F3 कंपोजिशन F3 कंपोजिशन F3 4 टाइम्स कर दूं या कितने ही बार करूं, क्या होगा, ध्यान से समझना, क्या होगा, क्या मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो इन्हीं में से कोई एलिमेंट मिल जाएगा, या ये जो रिजल्ट आएगा वो इन एलिमेंट्स के अलावा भी कुछ आ सकता है। बात पकड़ पा रहे हैं सब लोग, से यस और नो। चलिए अब क्या होता है डियर फेलोज, चलो अब हम इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। लेट्स बी ऑन द बोर्ड प्लीज। F2 F3, F2 आपने किसको बोला है, अच्छा ये तो समझते हैं, FOG of x is nothing but F of G of x. So if I want to know कि F2 composition F3 of this square पोजीशन पे क्या मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, F2 F3 of the square ABCD, राइट और नॉट। अब देखिए ध्यान से, F3 on ABCD, F3 क्या करता है, 180 डिग्री रोटेट कर देता है, तो F3 जब इस पर अप्लाई होगा, सो दिस विल बी रोटेटेड बाई 180 डिग्री, सो थिंग्स विल बी लुकिंग लाइक दिस। से यस और नो। चलिए F2 क्या करता है प्यारे बच्चों बताइए, F2 90 डिग्री रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज करता है, तो अब इस एलिमेंट का जब आप 90 डिग्री रोटेशन करेंगे, तो लेट्स से A यहां पर है, तो A यहां पहुंच जाएगा, B यहां आ जाएगा, C यहां। अगर आप मुझसे पूछें कि सर ये क्या लिखा है, इस पोजीशन को जरा ऑब्जर्व कीजिए, इन सारे एलिमेंट्स में ये पोजीशन क्या R270 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, CDAB, CDAB। So this can be written as R270
of a square ABCD. So if you compare F2 क्या था अपने पास, F2 को आपने बोला R90, राइट, F3 को आपने बोला R180, राइट, और आपको मिला R270. सो R90 कंपोजिशन R180 क्या मिल गया, R270. तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की बात है यहां पर आई. अलजेब्रा आपको टफ क्यों लगने लगता है, मैं आपको इसका रीजन बताता हूं प्यारे बच्चों. ये टफ इसलिए लगने लगता है क्योंकि आपको बेसिक्स पे ये बोल दिया जाए कि ये सब पढ़ के आना. कंपोजिशन ऑफ फंक्शन नहीं पढ़ा, पढ़ के आइए, 12th पूरा रिवाइज करके आइए. और आप भी अच्छे बच्चे हैं, 12th रिवाइज करने लगे, 1 महीने में वो खत्म कर पाया, उसके बाद इंटरेस्ट लूज कर गए, फिर बोलते हैं मैथ्स ऑप्शनल टफ होता है. ऐसा होता है कि नहीं? तो ये आपके गाइड की जिम्मेदारी है, आपके टीचर की जिम्मेदारी है कि किस चीज को किस लेवल तक कहां पढ़ाना है. एंड आई एम प्रीटी श्योर if a person who is very much indulged into his topic with the experience of the exam for which you are preparing and he is making you prepare for that, तो उस एग्जाम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी चीजें बात बनेगी. नहीं तो केवल नॉलेज फिर रिफ्लेक्ट उस लेवल पे नहीं कर पाती है. फिर वही आता है कि यार ये तो तुम्हें पता होना चाहिए था, इंटीग्रेशंस तो तुम्हें आता होना चाहिए था. आई नेवर से लाइक दिस. अगर आता ही होना चाहिए था तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ फिर, और आप कोचिंग क्यों कर रहे हैं? सॉरी. थिंग इज, मुझे एज अ टीचर ये पता होना चाहिए था कि कितनी चीजों को मुझे रिकॉल करना है, रिवाइज करना है, और मैं उसको खुद यहां पर आपको उस पॉइंट पर पिन पॉइंट करता जाऊं कि जैसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस. मैं क्लियरली क्लास के अंदर बच्चों को बोलता हूं, नहीं मनरेगा मजदूरी करनी, नहीं जाके 12th में रिवाइज करना है. इतनी सी जरूरत है, बस मैंने बोल दिया आपको याद आ गया. अब इसको रिटेन कर लीजिए, इसको अपने साथ रखिए. क्लियर है बात? कोई दिक्कत? आई होप नो. बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर अभी तक चल रहा है और आगे भी ऐसे ही चलेगा. देखना ध्यान से. अब आप इनको कंपोज करके देख लीजिए. F3 कंपोजिशन, F3 क्या है, 180 डिग्री रोटेशन लगाता है. ठीक है, तो आप R180 करेंगे, यू विल गेट R360. R360 मींस R0. ठीक है, अगेन R0 कंपोजिशन R0, यू विल गेट R0 हियर यू गॉट R270. यहां मैंने पूरा प्रोसेस से समझाया, उसके बाद कितना आसानी से यहां बोल दिया. तो ये जो प्रैक्टिस है आज नहीं करनी है. आज तो हम केवल डिकोड कर रहे हैं चीजों को. जैसे जैसे कॉन्सेप्ट टॉक आगे बढ़ेगा आपको ये चीजें अपने आप सेट होने लगेंगी. तो आज ये मत सोचिए कि इसके कंपोजिशंस मुझे रिवाइज कर लेने हैं आज ही, याद, नॉट एट ऑल. तो हुआ क्या, मेरे को ये लाइक ऑब्जर्वेशन मेरा आया फॉर द टाइम बीइंग. मान लीजिए कि मैं अगर S से एक एलिमेंट उठाऊं, इसी S से दूसरा एलिमेंट उठाऊं, उन दोनों को आपस में कंपोज करूं, तो जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है वो अगेन उसी सेट का एलिमेंट मिल रहा है. क्या बोला? इफ आई कंपोज, हिंदी में समझ लीजिए, इफ आई कंपोज एनी 2 एलिमेंट. अब वो 2 एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. any 2 element and I do the composition between them, I get the result and that result must be inside that set itself. तो बोलेंगे अगर ऐसा हो गया then this composition is called the binary composition. क्या बोलेंगे इसको? The binary composition on the set S. कोई दिक्कत? कहां से चले थे? पैटर्न से, ऑब्जर्वेशन से, फिर उनका एक कलेक्शन बनाया. कलेक्शन जो बनाया, अब एलिमेंट्स के बीच में डिशुम कराया,
और वो जो डिशुम है वो क्या है, वो एक कंपोजिशन है। अगर उस कंपोजिशन ने ऐसे बिहेव किया कि मैं इन एलिमेंट्स का कितने ही बार डिशुम करूं, इसी सेट का एलिमेंट ही मुझे मिलेगा एज अ रिजल्ट, आई विल से कि दैट सेट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन। अगली स्लाइड पे जाए। तो क्या था हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों, एक सेट S था। फिर हमने क्या किया, सेट S को इक्विप कर दिया बाइनरी ऑपरेशन के साथ, या बाइनरी कंपोजिशन, एक ही बात होती है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन S। तो इसको बोल दिया गया देन इज कॉल्ड, ध्यान से देखिएगा, एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, और S, A, O इज क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब ये होता है कि उनके एलिमेंट्स को आपस में कितने ही बार कंपोज कराते रहिए, उस सेट से बाहर एलिमेंट्स नहीं जाएंगे एज अ रिजल्ट। सो इसको क्लोज्ड बोला जाता है। और इसी चीज को बोला जाता है एस सेटिस्फाइज क्लोजर एक्सियम with respect to the composition O। हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस ले रहे हैं यहां पर, वो एडिशन हो सकता है, वो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हो सकता है, वो एडिशन मॉड्यूलो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम केवल चीजों को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अलजेब्रा इज ऑल अबाउट व्हाट। क्लियर है बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एनीवन? आई होप नो। चलिए, तो हमारी जो कहानी आदि मानव से शुरू हुई थी, वो शुरू हुई, हमने एक सेट बनाया, सेट को एक ऑपरेशन से अटैच किया। अब क्या हुआ, अब हम यहीं नहीं रुके। अब हमने कहा कि मेरे भाई, अगर ये स्ट्रक्चर सेटिस्फाइज some more properties, फर्स्ट तो ये हो गया, ये एसोसिएटिव हो, होल्ड्स आइडेंटिटी एक्सियम। अभी आप तनाव मत लीजिए कि ये क्या बला आ गई, मैं बताता हूं अभी आपको। इनवर्स एक्सियम क्या बोला उन्होंने कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये स्ट्रक्चर जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बन चुका है, उसने इन तीन कहानियों को और सेटिस्फाई किया। ये कहानियां क्या होंगी? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज होंगी, और जैसे जैसे ये कॉन्सेप्ट टॉक आगे बढ़ेगी, आपको एक एक चीज पे ब्यूटीफुल पिक्चराइजेशन देने की कोशिश की जाएगी। So if you wish to have those, don't forget to let us know. We will surely consider your suggestions and your views as well. Fair? So if this satisfies these three more axioms or properties, then we will say, तब हम क्या बोलेंगे? Again, जैसे मैंने अभी आपको क्लोजर चमका दिया, ऐसे ही आइडेंटिटी चमकाऊंगा, इनवर्स चमकाऊंगा थ्रू द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। और कैसे एग्जाम के लिए उसको तैयार करना है, दैट ऑल्सो आई विल इनकलकेट इन यू। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आप में ये शामिल कर दूंगा कि भाई इसके लिए फियर नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, तो हमने बोला देन S, O इज कॉल्ड अ ग्रुप स्ट्रक्चर। क्या बोल दिया इसको? ग्रुप। कहां से चले थे? सिंपल, हम बंजारे थे, हम टहलने वाले नोमैड्स थे, हमने चीज़ों को कलेक्ट किया, एक जैसी चीज़ें जैसा आपस में बिहेव कर रही थी उनको लेकर एक स्ट्रक्चर बना लिया। उसमें देखा कि इसमें से अगर कोई बाहर चला जा रहा है, दो लोगों को मिलाने पे तीसरा एलिमेंट जो सेट से बाहर चला जाएगा, तो उनको छोड़ दिया कि तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। जिन्होंने सेम बिहेव किया, क्लोजर रखा, उनको मिलाकर एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बना लिया। इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर से कुछ और प्रॉपर्टीज जब सेटिस्फाई होने लगी,
तो हमने कहानी ग्रुप पर पहुंचा दी। ठीक है, अब बात यही नहीं रुकी प्यारे दोस्तों, इससे आगे हम बढ़े। अब हमने क्या किया, ध्यान से देखते रहे ना। हमने कहा कि यार चलो ठीक है, सेट एक ही रखो, ध्यान से देखना, और मान लो इसके अंदर में दो डिफरेंट टाइप के डिसुम कराओ, दो डिफरेंट टाइप के कंपोजिशंस लेकर आओ। क्या किया, सेट एक ही रखो और मान लो आपने ले लिया सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट। अब उसमें एडिशन लगा दिया, सब्ट्रैक्शन भी लगा दिया, या एडिशन लगा दिया, मल्टीप्लिकेशन भी लगा दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहें कि आपने सेट ऑफ इंटीजर्स लिया, एक ऑपरेशन एडिशन भी लगाया, एक ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन भी लगाया उसी सेट के ऊपर, और आपने कहा कि अगर ये सेट कुछ प्रॉपर्टीज, लेट्स से पहले के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप बने। अब ग्रुप क्या होता है उसके बारे में अपन पूरी स्टोरी बना चुके हैं। मान लो S, स्टार ये क्लोजर और एसोसिएटिव रहे, ठीक है, जबरदस्ती नाम बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मान लो ये डिस्ट्रीब्यूशन, अभी ये तनाव लेने की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉज होते क्या हैं, बस ये मान लीजिए कि कुछ 3 प्रॉपर्टीज हैं जिनको ये स्ट्रक्चर फॉलो करे। कौन सा स्ट्रक्चर? S, O, स्टार, फॉर एग्जाम्पल Z, प्लस, डॉट। तो आपने कहा कि भाई साहब ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाएगा रिंग। क्या बोलेंगे इसको कि दिस इज अ रिंग। तो पहला जो सेगमेंट था, पहले सेगमेंट में हमें पढ़ना होता है, ये हो गया सेगमेंट 1, ध्यान से देखना, ये हो गया सेगमेंट 1 ऑफ अलजेब्रा, जिसमें कि हमें पढ़ना होगा ग्रुप थियरी। अब आप कहेंगे कि सर आपने नॉर्मल सब ग्रुप को सेट नहीं बताया, ये नहीं फला चला। अरे भाई डिकोडिंग हो रही है। जब मैंने कहा ग्रुप थियरी तो सारी की सारी चीजें जो ग्रुप थियरी से रिलेटेड होंगी वो उसके अंदर डील की जाएंगी, लाइक ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, लाइक आइसोमॉर्फिज्म, लाइक सब ग्रुप, लाइक साइक्लिक ग्रुप्स, लाइक कोशेट थियरी, लाइक इंडिसेस, लैग्रांज थ्योरम, क्लास इक्वेशन, कोशेंट ग्रुप, वेक्टर ग्रुप, राइट। मजा आ रहा है? We will do the things for group theory in that, but if you keep on like alive in your interest। तो पहला जो हमें सेगमेंट पढ़ना होता है अलजेब्रा में, that is ग्रुप थियरी। दूसरा जो सेगमेंट है, अब इसी ने कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज लगा दी, तो आपको मिलने लगा इंटीग्रल डोमेन, किसमें? एक सेट 2 ऑपरेशन में, और फील्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, कहने का मतलब ये जो ब्लॉक 2 हमारा बना ऑफ अलजेब्रा, इसको हम नाम दे देते हैं रिंग थियरी। और रिंग थियरी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं किस चीज को पढ़ते हैं? रिंग, इंटीग्रल डोमेन, फील्ड। एंड इट इज जस्ट द रिफ्लेक्शन, if you put the 70% efforts here, then by the just 20% efforts, 20 to 30% efforts needed here. Believe me, this is the reality if you prepare this topic in right way. Okay dear fellows, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, अब मैथमेटिशियंस ठहरे, उनकी क्यूरियोसिटी का तो कोई अंत है नहीं। बोला कि भाई साहब सेट भी अगर मैं 2 कर दूं, मान लो एक सेट S लिया, एक सेट को F से लिखा, ऑपरेशंस भी 2 लिए, क्या किया इसने? कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है, को सेटिस्फाई किया, तो हम पहुंच गए वेक्टर स्पेसेस पर, और ये हम पहुंच गए लीनियर अलजेब्रा पर। बोलो हाँ या ना? सो व्हेन यू टॉक अबाउट अलजेब्रा एंड व्हेन यू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, मेरे लिए जो अलजेब्रा का मतलब है वो कहानी है, क्या है? अलजेब्रा मीन्स वी हैव मॉडर्न, या जिसको आप एब्स्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, अलजेब्रा
This consists of two parts. First part is group theory. The another part is ring theory. The next part is linear algebra. ठीक है? So this is in the paper 2 of CSE and Forest Services. This is in the paper 1. So when you ask to me, sir, what is the sequence you follow while preparing or making us prepare? I'll simply say, I follow this thing. Algebra means I will prepare like this. And in this concept talk also, we will be moving like this only. Okay? So I hope you people will surely be enjoying this decoding of, not only decoding, with the coming concept talks as well. So if you have any suggestions, if you want to put any kind of reviews or anything, don't forget to put those. We will surely consider this and will get back to you. So we'll meet in the next concept talk with the very interesting things. Till then, keep learning, keep enjoying.